کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا تھا جب لوگ قرآن پاک کے لیے لڑ رہے تھے؟ جی، آپ بھی سوچ کے حیرت زدہ ہوں گے کہ قرآن پاک جیسے مقدس کتاب کے لیے کیوں لڑنا؟ لیکن جب حضرت عثمان یعنی کہ خلیفہ 3 بنے تو قرآن پاک کے لیے بہت سے موضوعات پہ لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی کن وجوہات پہ ہوئی، کیوں ہوتی رہی؟ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بحث تھی۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویلکم ٹو M2 ریئیکٹنگ اینڈ لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے، مسلمانوں کی آپس میں ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس سے پہلی بار پوری مسلمان امت کے ٹوٹنے کا خطرہ تھا، کیونکہ یہ بحث کسی اور بات پر نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب پر تھی، قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان قرآن کو عربی کے 7 بڑے ڈائلیکٹس، 7 بڑے لہجوں میں پڑھتے تھے، لیکن جیسے جیسے مسلمانوں کی خلافت پھیلتی گئی، پوری دنیا سے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور پہلی بار صحابہ سے قرآن سیکھنے لگے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا، یہ نئے مسلمان صحابہ سے الگ الگ لہجوں میں قرآن سیکھتے تھے، جو پہلے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ کچھ نئے لوگ اپنے لہجے کو صحیح کہنے لگے اور دوسروں کے لہجوں کو غلط، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ کچھ مسلمان قرآن کے ان لہجوں کی وجہ سے ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ اسی طرح یہ بحثیں بڑھتی گئی اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں اپنی پیک پر پہنچی۔ حضرت عثمان کے دور میں مسلمانوں نے یہ سارا علاقہ فتح کر لیا تھا، اور اب مسلمانوں کی فوج تیزی سے آذربائیجان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن وہیں آذربائیجان میں جب ایک دن مسلمانوں کی فوج نماز کے لیے کھڑی ہوئی، نماز کے فوراً بعد مسلمانوں کی فوج کی آپس میں ایک بہت ہی خطرناک بحث شروع ہوئی، جس میں مسلمان ایک دوسرے کے قرآن پڑھنے کے طریقے کو غلط کہنے لگے اور صرف اپنے لہجے کو اصل قرآن کہنے لگے۔ آخر یہ بحث اتنی بڑھ گئی کہ ایسا لگنے لگا کہ اب مسلمان پہلی بار ایک دوسرے کے خلاف ہی تلواریں نکالیں گے۔ لیکن مسلمانوں کی اس فوج میں ایک بہت بڑے صحابی بھی موجود تھے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح لڑتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ کہیں آگے جا کر مسلمان فرقوں میں نہ بٹ جائیں، تو وہ اس جنگ کو چھوڑ کر تیزی سے واپس مدینہ میں خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ پہنچتے ہی اپنے گھر جانے کے بجائے وہ سیدھا حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی یہودیوں اور کرسچنز کی طرح ڈیوائیڈ ہو جائیں، آپ اس امت کو ٹوٹنے سے بچا لیں۔ لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ آسمانی کتابوں پر بحث ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ دنیا میں 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ پہلی کتاب تورات ایک بہت بڑے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پوری فوج کو سمندر میں تباہ کر دیا تھا اور بنی اسرائیل کو لے کر ڈیزرٹ میں پھر رہے تھے، تب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اللہ کی اس عظیم کتاب کے لیے ایک بڑا صندوق، تابوت بنایا جائے۔ اس تابوت میں تورات کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ہولی چیزیں رکھی گئی، جیسے کہ ہارون علیہ السلام کی چھڑی، The 10 Commandments، اور من و سلوہ کا ایک برتن۔ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا ہولی تھا کہ وہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے، اور آخر فلسطین کو فتح کرنے کے بعد بنی اسرائیل نے یہ تابوت اپنے سب سے بڑے ٹیمپل میں رکھا، اور اگلے 300 سال تک یہ تابوت اور تورات وہی پڑے رہے۔ لیکن آخر 300 سال بعد بنی اسرائیل کے فلسطین پر ایک بہت بڑے قوم نے حملہ کیا، جن کا سب سے بڑا واریر تھا جالوت۔ جالوت اور اس کی فوج بنی اسرائیل کو تیزی سے کرش کرتی گئی، اور فلسطین تیزی سے بنی اسرائیل کے ہاتھ سے نکلنے لگا، اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ بنی اسرائیل کے علماء نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہر جنگ میں ہم یہ تابوت اپنی فوج کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اس تابوت کی برکت سے ہم جنگ جیت جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جالوت کی فوج نے سب سے پہلا حملہ
इसी ताबूत पर की और मूसा अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को छीनकर अपने साथ ले गए, जिसके अंदर अब तक दुनिया की पहली असली तौरात पड़ी हुई थी। आखिर बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा बादशाह है, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जालूत और उसकी फौज पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को दोबारा उसकी असल जगह पर रखा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मसला यह था, जब इस संदूक को खोला गया, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी ही नहीं। मतलब पहली बार दुनिया से ओरिजिनल तौरात गायब हो चुकी थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, ज़बूर, जिसके बाद आने वाले प्रॉफिट्स ने तौरात को दोबारा लिखा और तौरात और ज़बूर को एक साथ एक ही जगह सेफ रख दिया। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया। बेबीलोन के बहुत बड़े बादशाह बख्त नसर, उसने इतना खतरनाक हमला किया कि लाखों यहूदियों को मार डाला, यहूदियों के टेंपल को गिरा दिया और बख्त नसर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि जाओ और दुनिया की हर तौरात को जमा करके उन सबको आग लगा दो। और इस तरह एक बार फिर तौरात और ज़बूर दुनिया से गायब हो गई, जिसके बाद अगले 100 साल तक दुनिया में कोई भी तौरात और ज़बूर नहीं थी। आखिर 100 साल बाद एक यहूदी ने दोबारा तौरात लिखी, लेकिन कुछ अरसे बाद फिर एक बादशाह ने हमला किया और तीसरी बार दुनिया की सारी तौरात को जला दिया गया, जिसके बाद यहूदियों ने बैठकर फिर दोबारा तौरात लिखी। इसी तरह आज दुनिया में जो तौरात है, द हिब्रू बाइबल, वो मूसा अलैहिस्सलाम की ओरिजिनल किताब नहीं, बल्कि दुनिया से 3-4 बार गायब होने के बाद दोबारा लिखी गई है। इसीलिए आज दुनिया में कोई भी यहूदियों की इस किताब को मूसा अलैहिस्सलाम की असल किताब नहीं मानता, इवन यहूदी भी The नहीं। Bible is literally not true. अब तौरात के बार बार गायब होने और जला दिए जाने की वजह से तौरात इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब दुनिया में अल्लाह की कोई भी आसमानी किताब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ने अपने बहुत बड़े पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम पर अपनी तीसरी आसमानी किताब नाजिल की, इंजील। जी लेकिन इंजील को भी बिल्कुल कुरान की तरह पहले दिनों में एक किताब की शक्ल में नहीं लिखा गया और ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद उनके फॉलोअर्स ज़बानी एक दूसरे को इंजील सिखाने लगे और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 100 साल बाद एक आदमी ने दुनिया की पहली बाइबल लिखी और उसे सही इंजील कहने लगा। लेकिन इस आदमी की पहली इंजील को पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ से बिल्कुल तौरात और ज़बूर की तरह इंजील में भी कंफ्यूजन शुरू हुई, जिसके बाद हर तरफ लोग अपनी मर्जी से इंजील लिखने लगे और आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद एक ऐसा वक्त भी आया कि दुनिया में हजारों डिफरेंट इंजीलें थी। इसीलिए ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद दुनिया के सारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से इन हजारों इंजीलों में से सिर्फ 4 इंजीलों को सेलेक्ट किया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए आज के जमाने की इंजील बाइबल को ईसा अलैहिस्सलाम की सही इंजील नहीं कहा जा सकता, बल्कि इवन क्रिश्चियंस भी इसे सही इंजील नहीं समझते। तो अब तौरात, ज़बूर और इंजील तीनों आसमानी किताबें जब दुनिया से गायब हो चुकी थी, तो अल्लाह ने दुनिया में अपनी आखिरी किताब नाजिल की, कुरान। Muhammad, read. लेकिन बिल्कुल तौरात, ज़बूर और इंजील की तरह जब मुसलमान हजरत उस्मान के दौर में कुरान पर भी बहस करने लगे, उसी वक्त हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी बिल्कुल यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह अल्लाह की किताब पर इख्तिलाफ में पड़ जाए, आप इस उम्मत को बचा लें। लेकिन खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मसले का पहले से ही पता था, क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले एक दिन मदीना में 2 बच्चे एक दूसरे को कुरान सुना रहे थे। इन दोनों बच्चों का कुरान था तो एक ही, लेकिन इनके कुरान का लहजा एक दूसरे से डिफरेंट था, जिसकी वजह से ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने लगे। जब उनके टीचर्स को इसका पता चला, इन बच्चों के टीचर्स भी कुरान के लहजों पर लड़ने लगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लड़ाई इतनी फैल गई कि ये मसला सीधा खलीफा उस्मान तक पहुंचा। तो अब जब मदीना से लेकर खिलाफत के बॉर्डर्स तक लोग कुरान के लहजों पर बहस करने लगे थे, तब
अब हजरत उस्मान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया और मदीना के सारे बड़े सहाबा को मस्जिद नबी में जमा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े होकर कहा कि वक्त आ चुका है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को कुरान के एक ही लहजे पर यूनाइट किया जाए। जिसमें कुछ सहाबा हजरत उस्मान के इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन ज्यादातर सहाबा ने हजरत उस्मान के इस फैसले को सपोर्ट किया, जिनमें सबसे बड़े सहाबी थे फ्यूचर खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक लहजे का कुरान बनाने के लिए 8 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी का हेड उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित कोई आम सहाबी नहीं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से कुरान की आयत लिखा करते थे। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार कुरान को किताब की शक्ल में लिखवाया था। ये दुनिया का पहला कुरान सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास था, फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास था। तो हजरत उस्मान ने इसी कुरान को दोबारा मंगवाया और हजरत ज़ैद से कहा कि इसी कुरान को देखकर एक ही लहजे में कुरान लिखो, लेकिन वो लहजा कुरैश का लहजा होना चाहिए, क्योंकि कुरान असल में इसी लहजे में नाजिल हुआ था। जैसे ही कुरान एक ही लहजे में कंप्लीट कर लिया गया, हजरत उस्मान ने पूरी खिलाफत में एक हुक्म जारी किया कि जिस मुसलमान के पास भी कुरान के हिस्से पड़े हुए हैं, चाहे वो चमड़े, पत्थर या पत्तों पर लिखी हो, उन सब कुरान के हिस्सों को खिलाफत के हवाले कर दिया जाए। जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने कुरान के नुस्खों को खिलाफत के ऑफिसर्स के हवाले करने लगे। जब कुरान के ऑलमोस्ट सारे नुस्खे हजरत उस्मान के पास जमा हुए, हजरत उस्मान ने हुक्म दिया कि अब इन सब को आग लगा दी जाए। जैसे ही इन सब को आग लगाई गई, उसके बाद अब दुनिया में सिर्फ एक ही कुरान बाकी रहा, कुरैश के लहजे में लिखा गया कुरान। जिसके बाद हजरत उस्मान ने इसी कुरान के 7 कॉपीज बनाई और उसे खिलाफत के हर बड़े शहर की तरफ भेज दिया और पूरी दुनिया में ऐलान किया कि आज के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक ही यही कुरान होगा। हजरत उस्मान के इसी कुरान को आज पूरी दुनिया के बिलियंस ऑफ मुसलमान डेली पढ़ते हैं और हजरत उस्मान के जमाने का कुरान दुनिया के कुछ हिस्सों में पड़ा हुआ है। उज़्बेकिस्तान, इस्तांबुल, दमिश्क और इवन बर्मिंघम में भी उसी कुरान का कुछ हिस्सा आज तक पड़ा हुआ This है। remarkable document had been resting on the shelves of the university library for decades. इस तरह हजरत उस्मान ने कुरान को आज के तौरात और इंजील की तरह बिगड़ने से बचा लिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया में कोई भी कुरान की ऑथेंटिसिटी पर सवाल नहीं उठा सकता। अब हजरत उस्मान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक कुरान पर यूनाइट तो कर लिया था, लेकिन मुसलमानों की खिलाफत जो इससे पहले बहुत तेजी से हर तरफ फैल रही थी, अब बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी और रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों को एक कदम भी आगे रखने का मौका नहीं दे रहे थे। तो अब हजरत उस्मान की खिलाफत में आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर। इस्लाम की तारीख की पहली नेवी। सब्सक्राइब। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से देखा आपने कि कुरान पाक के लिए किस तरह लड़ाई हुई। हमने ये देखा कि तौरात, ज़बूर और इंजील, उन मुकद्दस आसमानी किताबों को क्या हाल किया गया। मतलब आज के टाइम पे इस वीडियो को देख के या इसके अलावा और भी हम अगर अपने तौर पे सर्च करें या अपने तौर पे रिसर्च करें, तो हमें यही आइडिया होगा कि जो बाकी की 3 किताबें हैं वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं। लेकिन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह कुरान पाक को इकट्ठा किया, और सबसे पहला जो कुरान पाक है इन्हीं के टाइम पे लिखा गया और सबको एक साथ लिखा गया, क्योंकि कुछ आयतें किसी और के पास ही, कुछ किसी और के पास ही, कुछ किसी और के पास ही। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने खुद भी कहा था कि ये किताब की हिफाजत मैं खुद करूंगा, इसीलिए ये आज तक किताब अपनी असली हालत में मौजूद है। दुनिया की 3 जो किताबें हैं उन बुक्स पर हर एक को तराज है। अक्सर आप मतलब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये पूरी हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं ये ऐसा था वैसा था, लेकिन कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसके बारे में आज तक किसी को शक नहीं है, क्योंकि इसका लफ्ज ब लफ्ज जिस तरह नाजल हुआ था आज भी वैसा की वैसा ही है। और ये जो फाइट होना शुरू हो गई थी, हमने देखी कि ये फाइट किस वजह से थी और हजरत उस्मान ने किस कदर इसका मतलब किस तरह दूरंदेशी से इसका हल निकाला।
اور پورا قرآن پاک ایک جگہ پہ لکھ کے باقی سب کو مطلب کہ وہ ختم کیا تاکہ اختلافات نہ پیدا ہوں۔ اور یہ جو آج ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ وہی قرآن پاک ہے جو کہ اصل حالت میں نازل ہوا اور حضرت عثمان علیہ السلام نے اپنے مطلب جو اپنے دور حکومت میں اپنی نگرانی میں یہ لکھا۔ تو آپ کو اب اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کیا چیز تھی یا کس وجہ سے فائٹ ہوتی تھی اور یہ کیوں، اس کے لیے یہ کیوں کیا گیا، کیونکہ یہ بہت ضروری تھا۔ ادروائز قرآن پاک کا بھی وہی حال ہوتا جو باقی آسمانی کتابوں کا ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔